Morning students, myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. We are doing organic chemistry. In that, we are doing some basic principles and techniques of class 11th, and this is lecture 7th. Today's subtopic is nomenclature of different classes of the compounds. In that, we are doing nomenclature of aldehydes, nomenclature of ketones, nomenclature of carboxylic acids, nomenclature of acid chlorides, nomenclature of acid anhydrides. So students, this is continued from the lecture 6. As you know, we have discussed the other functional group in lecture 6. Hope you have enjoyed that. So let's continue with the nomenclature of aldehydes. बच्चों, functional group of the aldehyde is C double bond OH, or condensed form में we can write it like CHO. बच्चों, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज अल. और बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि IUPAC नेम जो है दैट कंसिस्ट प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. इसकी मैं बात बार बार कर रहा हूं ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए बेटा. और बेटा वर्ड रूट जो है दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड द प्रीफिक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइड सब्स्टिट्यूट, एंड द प्राइमरी सफिक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन कार्बन लिंकेज. वेदर देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन, देन प्राइमरी सफिक्स इज एन. If the double bond is there between the carbon carbon, then suffix is ene, and if there is carbon carbon triple bond, then primary suffix is ine. And बच्चों secondary suffix that gives the information about the functional group, and secondary suffix for the aldehydes is al. So बच्चों, let's practice the nomenclature of some aldehydes. This is the first member of aldehyde, that is HCHO. बच्चों, here we have one carbon, that's why word root here is meth. Hope आपको word roots अब तक याद हो चुकी होंगी बेटा. Meth is the word root for one carbon atom बेटा, and primary suffix here is ane, and secondary suffix is al because aldehyde group is there beta. So its IUPAC name is methanol. Or beta this E we have to drop it, clear, because secondary suffix that is starting from the vowel A. So beta if it is starting from the vowel, then we have to eliminate, we have to drop this E beta. That's why the name is methanol. उसी तरह beta, this is second member of the aldehyde. There are the two carbon atoms here. So word root is eth. Carbon carbon के बीच में single bond is there. Then primary suffix is ane here, and secondary suffix is al beta. So drop this e. So we will get ethanol. So ethanol is the IUPAC name of this aldehyde beta. Then beta next is 1, 2, 3. Prop plus ane plus al. Then it's your propanol beta. उसी तरह बेटा 1, 2, 3, 4 carbon atoms are there. So word root for this is but plus ane plus al. Then it's your butanol. So beta, but in case of your two aldehyde groups beta, now here we have the two aldehyde groups beta. So always remember beta, जो आपका aldehyde group है that is always present at the terminal positions. Is that clear? So beta, now there are the two carbon atoms over here. So word root here is eth, and then
there is a carbon-carbon single bond is there. So primary suffix here is ane, and बच्चों it's at one position, it's at second position, so 1 2, and we have to use the word di beta because these are the two function group over here. Clear? So di is there, then ul is the secondary suffix. So it's your ethane 1,2-diol. So now just see beta, there is a hyphen between the alphabet and that of your number, and number और number के बीच में there is a comma, and again number और alphabet के बीच में there is a hyphen. So this you have to keep in mind. Clear? So its name is ethane 1,2-diol. और बेटा E here is retained. Clear? Because next you have this secondary suffix here, that is starting from the consonant beta, that is D over here. Is that clear? So this E is retained over here. Now beta in the next here CHO, CH2, CHO. So beta this is CHO, CH2, CHO. Now there are the two aldehyde groups over here. So we have to start the numbering from one aldehyde group beta. This is 1 2, then this is 3. Clear? 3, then it's a prop, then beta carbon carbon के बीच में single bond is there, then this is ane, and this is 1 and 3 पे आपका aldehyde group है बेटा, then 1 3 और ये दो हैं, then di, and then secondary suffix is ul. So this is a propane 1,3-diol. Hope students this is clear. Similarly here 1 2 3 4, 1 or 4 position पे बेटा aldehyde groups are there, and there are the 4 carbon atoms over here. So beta this is but. Okay beta, before going further इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, CHO CH2 दो बार है तो CH2 whole twice बेटा, then CHO. Clear? Then this is a but plus ane plus 1 and 4 पे आपका aldehyde group है बेटा, 1 4, then दो हैं aldehyde groups बेटा, then di, then ul. So this is butane 1,4-diol. Now in case of your 3 aldehyde groups बेटा, अगर हमारे पास aldehyde groups 3 हैं, क्लियर? अभी मैंने क्या कहा था बेटा कि aldehyde groups are at the terminal position, but you must know बेटा there are only the 2 terminal positions. Is that clear? In the beginning and at the end. Is that clear? But here we are having 3 aldehyde groups. So in such cases beta we will use the suffix carbaldehyde instead of ul. Now let's see how. और बेटा जब आपके 3 aldehyde ग्रुप हैं, एक आपका यहां है बेटा, एक इधर है, एक वन एंड पे है कार्बन कार्बन चेन में, एक आपका दूसरे एंड पे, और तीसरा कहां है बेटा, बीच में है. क्लियर? सो इस केस में अगर 3 aldehyde ग्रुप्स हैं बेटा, देन वी विल नॉट काउंट दीज कार्बन एटम्स ऑफ द aldehyde ग्रुप्स व्हाइल नेमिंग. क्लियर? सो बेटा यहां हम किस किस कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, 1 2 एंड देन 3. क्लियर? सो देयर आर द 3 कार्बन एटम्स. क्लियर? और फर्स्ट कार्बन के एटम के साथ भी आपका aldehyde ग्रुप है, सेकंड के साथ भी aldehyde ग्रुप है, और थर्ड के साथ भी aldehyde ग्रुप है. सो बेटा द वर्ड रूट फॉर 3 दैट इज अ prop, देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज देयर, देन बेटा 1 2 3 3 हो गए बेटा यहां, देन वी हैव टू यूज द ट्राई वर्ड, और ये क्या है, कार्बल्डिहाइड बेटा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द सफिक्स हियर इज कार्बल्डिहाइड. सो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड. सो इट्स नेम इज हियर बेटा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड. नाउ बेटो, नाउ बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स. बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो है आपका कीटोन्स का वो है C डबल बॉन्ड O, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप we have carbon atoms beta. Now C double bond O. Clear? So suffix for the ketones is on beta. लेकिन बच्चों कई बार when there are the multiple functional groups beta, ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, is that clear? And if this is not the main functional group beta, ketone is not the main functional group, if this is not given the preference, so this will be written as the prefix, and then the prefix will be oxo or keto. Now बच्चों
जैसा कि आप जानते हैं IUPAC नेम में क्या क्या रहता है बेटा, प्रीफिक्स रहता है, वर्ड रूट रहता है, प्राइमरी सफिक्स रहता है और आपके सेकेंडरी सफिक्स रहते हैं। सो बच्चों ये भी आपको पता है कि वर्ड रूट क्या इंफॉर्मेशन देता है, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, और आपका प्राइमरी सफिक्स जो है कार्बन कार्बन लिंकेज की इंफॉर्मेशन देता है बेटा, और सेकेंडरी सफिक्स आपको मेन फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है बेटा, और प्रीफिक्स जो है साइड सब्स्टिट्यूट की बात करता है बेटा, साइड सब्स्टिट्यूट की इंफॉर्मेशन देता है। सो बच्चों लेट्स टेक द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस कीटोन बेटा, दैट इज इट्स propanone here, CH3 C double bond O CH3 beta. Let's see how it is propanone. Now there are the 3 carbon atoms over here, prop, and carbon carbon के बीच में बेटा single bond है, and on is the suffix for ketone beta, then it's a propanone. Now E we have to drop beta, clear? E हम यहां नहीं रखेंगे बेटा because next is also your vowel, that is a O here, so this is a propanone, clear? So now this is another ketone beta. So 1 2 3 4 carbon atoms are there, then bird root is a prop, then beta this ketonic group is at the second position because we have to give the numbering from this side so that इसको आपका lowest number मिले बेटा। So this is but plus an, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, and then plus 2 on बेटा। अब बच्चों 2 क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ दिस कीटोनिक ग्रुप, क्लियर? सो दिस इज ब्यूटान 2 on बेटा, E we have to drop, is that clear? Because next is vowel O, then next is 1 2 3 4 5 पेंट बेटा, then an, then 3 on, because 3 पे आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, सो दिस इज पेंटान 3 on बेटा। नाउ बच्चों next is 1 2 3 4 5 6 beta, 6 carbon atoms are there, and we have this ketonic group at the third position beta, then this is your hex plus an plus 3 on beta, that is your hexane 3 on. Hope bachcho this is clear. Now beta if there are the 2 ketonic groups, is that clear? Then 1 2 3 4, then it's a but beta, then plus an, और आपका 2 और 3 पोजीशन पे क्या है बेटा, ketonic groups are there, so बेटा 2 3, then die word we will use क्योंकि ketonic groups कितने हैं, 2 हैं, so that is a die, then on बेटा, so now this is butane 1, this is butane 2 3 die on बेटा। Now E is not dropped here because next is a consonant D. Now bachcho let's practice some other compounds which I have taken from your NCERT book. So this is some aldehyde beta having 2 carbon atoms, this is eth plus an plus al beta, then it's a ethanol. Now next is here beta there are some substituents, ठीक है, but the numbering we have to start from this carbon, जो आपका एल्डिहाइड्स का जो कार्बन है बेटा, इसको हमने पहला नंबर देना है, सो दिस 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 बेटा, देन वर्ड रूट फॉर 7 कार्बन, दैट इज हैप्ट बेटा, इज दैट क्लियर? एंड प्राइमरी सफिक्स जो है दैट इज एन बेटा, देन सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, अल है, लेकिन आपके मिथाइल और ब्रोमीन जो है, these are the 2 substituents बेटा, जिनको हम अल्फाबेटिकली एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा, ब्रोमीन को हम ब्रोमो, और दिस इज मिथाइल CH3, यू नो दिस इज CH3, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप, सो ब्रोमीन की आपकी जो पोजीशन है दैट इज 1 2 3 4 ब्रोमो, एंड मिथाइल की पोजीशन है बेटा 3, देन दिस 3 मिथाइल, देन इट्स हेप्टेनल। ना बेटा 4 और बी के बीच में क्या है, हाइफन इज देयर, बिकॉज नंबर और अल्फाबेट को हम बेटा हाइफन से सेपरेट करते हैं बेटा, और अगेन हाइफन इज देयर, और रेस्ट इज रिटन इन कॉन्टिन्यूटी, सो दिस 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल बेटा। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज सम कीटोन अगेन, क्लियर? सो
this was some cyclic ketone beta. Clear? So we have to start the numbering from this carbon beta. So this was 1 2 3 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो दिस 3 मिथाइल. इज दैट क्लियर? प्रीफिक्स क्या लगेगा बेटा? साइक्लोपेंटेनोन. इज दैट क्लियर? दिस 3 मिथाइल साइक्लो, बिकॉज दिस साइक्लिक, यू नो. क्लियर? साइक्लो, देन पेंट बेटा. क्यों? बिकॉज देर आर द 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 बेटा. इज दैट क्लियर? 5 कार्बन एटम्स आर देयर, दैट्स वाज साइक्लोपेंट. देन एन बेटा, देन ओन, ई रिमूव किया तो ये क्या बन गया बेटा? साइक्लोपेंटेनोन. दैट इज योर 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन. नाउ नेक्स्ट बेटा, नाउ दिस इज अगेन साइक्लिक कंपाउंड बेटा, और आपका एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर. इज दैट क्लियर? सो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे बेटा, सो वी डोंट हैव टू काउंट दिस कार्बन हियर बेटा. इज दैट क्लियर? सो मेन चेन में आपके क्या है? 6 कार्बन एटम्स आर देयर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ रिंग. देन दिस साइक्लो, और 6 कार्बन एटम्स हैं बेटा, हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्स एन. इज दैट क्लियर? देन सफिक्स क्या लगेगा बेटा? कार्बल्डिहाइड, बिकॉज वी हैव नॉट काउंटेड दिस कार्बन हियर. क्लियर? सो दिस साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बेटा. E is not dropped over here of your N. So this is cyclohexane carbaldehyde. Hope students this is clear. Now बच्चों next is your 1 2 3 4 5. Is that clear? Then it's a pent. Is that clear? Then बेटा प्राइमरी सफिक्स इज your इन. Is that clear? और वो कौन सी पोजीशन में बेटा? सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग यहां से देना है 1 2 3 4 5. इज दैट क्लियर? सो सेकंड पोजीशन पे इन है, सो पेंट 2 इन 1 अल बेटा. इज दैट क्लियर? या फिर सिंपली अल बेटा. दिस पेंट 2 इन अल, पेंट 2 इन अल. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा जिनको नेचर से सबसे पहले आइसोलेट किया गया. तभी बहुत सारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनको उनके कॉमन नेम से ही जाना जाता है. क्लियर? और जो आपके कॉमन नेम्स हैं बेटा, क्लियर, दे एंड विद द सफिक्स इक एसिड. इज दैट क्लियर? इक एसिड इज द सफिक्स ऑफ द कॉमन नेम्स बेटा. नाउ ये जो आपके कॉमन नेम्स हैं बेटा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेस. मीन्स जिन नेचुरल सोर्सेस से इनको ऑब्टेन किया गया बेटा, उन्हीं के लेटिन या ग्रीक नेम्स के बेस पे इनका जो है कॉमन नेम को डिराइव किया गया बेटा. फॉर एग्जाम्पल बेटा HCOOH, यू नो दिस इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड. इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड है. और इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया गया कहां से? रेड आंट से बेटा, जिनको हम लेटिन में क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मिका. इज दैट क्लियर? इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा बेटा. नेक्स्ट बेटा CH3COOH, इट इज नेम्ड एज एसिटिक एसिड. इज दैट क्लियर? और बेटा इट इज प्रेजेंट इन द विनेगर. क्लियर? सिरका जो आपका घर में होता है बेटा, उसमें ये आपका एसिटिक एसिड रहता है. और बेटा लेटिन में इसको हम क्या कहते हैं? एसिटम. और इसी बेस पे इसका नाम क्या पड़ा? एसिटिक एसिड. नाउ बेटा ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज CH3CH2CH2COOH, इसको ब्यूटायरिक एसिड क्यों कहा गया? क्लियर? क्योंकि इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेंसिड बटर. रेंसिड बटर मीन्स ऑक्सीडाइज्ड बटर. इज दैट क्लियर? और लेटिन में हम बटर को क्या कहते हैं बेटा? ब्यूटायरम. क्या कहते हैं? ब्यूटायरम. दैट्स व्हाई दिस इज अ ब्यूटायरिक एसिड. नाउ बच्चों IUPAC सिस्टम. बच्चों IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसमें हम जो सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड यूज करते हैं बेटा. एंड दिस ओइक एसिड इज एडेड आफ्टर द एल्केन बेटा. और एल्केन का जो E है उसको हम क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं बेटा. सो जनरली दे आर सेड टू बी एल्केनोइक एसिड्स. नाउ बच्चों कैसे? दिस इज एल्केन हियर प्लस माइनस E मींस E वी हैव टू ड्रॉप, बिकॉज नेक्स्ट जो आपका सफिक्स है बेटा
दैट इज अ ओइक एसिड। ना ओइक का ओ जो है दैट इज अ वावल, तो फर्स्ट वावल ऑफ दिस एल्केन विल बी ड्रॉप्ड हियर, सो दे विल बी नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड। ना बच्चों, और जो आपकी नंबरिंग हम करते हैं कार्बन चेन की कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कहां से शुरू करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से। बेटा अगर कार्बोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा है, क्लियर, तो जो आपका एल्केन का ई है बेटा दैट विल बी रिटेन्ड, क्लियर। और बेटा जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं दे आर इंडिकेटेड बाय एडिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस लाइक डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एटसेट्रा बेटा। सो ये आपका डाई और ट्राई टर्म्स हम यूज करेंगे बेटा ओइक से पहले। सो अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं बेटा तो क्या हो गया? डाई ओइक, 3 है तो ट्राई ओइक बेटा लेकिन ट्राई ओइक, लेकिन बेटा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में है तो हम आपका ओइक एसिड यूज ही नहीं करते, ओके। बट वी यूज द टर्म डाइओइक एसिड फॉर द 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बेटा, लेकिन 3 के केस में हम ओइक एसिड सुफिक्स यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ बेटा इन केस ऑफ दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका दैट इज योर C डबल बॉन्ड OOH। कंडेंस फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? COOH। इज दैट क्लियर? और इसके लिए जो सुफिक्स है पहले ही पता लग चुका है आपको बेटा, दैट इज ओइक एसिड। और बेटा जैसा कि आप जानते हैं IUPAC नेम में क्या क्या रहता है? प्रीफिक्स, वर्ड रोड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स बेटा। सफिक्स इज मिसप्लेस्ड ओवर हियर बेटा। देन योर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वर्ड रोड की इंफॉर्मेशन देता है बेटा। साइड सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दे गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीफिक्स, क्लियर। देन प्राइमरी सफिक्स जो है बेटा कार्बन कार्बन लिंकेज की इंफॉर्मेशन देता है, और सेकेंडरी सफिक्स जो है आपको मेन फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है बेटा। और वो जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है यहां दैट इज COOH, तो सफिक्स क्या है इसके लिए बेटा? ओइक एसिड। नाउ बेटा लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हियर देयर इज ओनली 1 कार्बन, क्लियर। सो मिथ is the word root for this beta, then ane, then oic acid beta, so E we have to drop because next is a oic acid, so this is methanoic acid. Now next is there are the 2 carbon atoms in this CH3COOH, so then eth plus ane plus oic acid, then that's your ethanoic acid. Now beta then next is 1 2 3 carbon atoms are there, is that clear? Then this is your prop plus ane plus oic acid, and that is your propanoic acid. Now next is 1 2 3 4, that is a but plus ane plus oic acid, that is a butanoic acid. Then beta in case of your 2 carboxylic acid groups, clear, जैसा कि आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेगा, क्लियर, कभी भी बीच में नहीं रहेगा। अगर बीच में कार्बन कार्बन चेन के बीच में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं 2 से ज्यादा, क्लियर, देन बेटा वी विल नॉट यूज द सफिक्स ओइक बट वी विल यूज द सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस compound is having your 2 carboxyl groups beta, so 1 and 2, so there are the 2 carbon atoms beta, then it's so eth, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज देयर ane, और 1 पे COH है, 2 पे भी COH है बेटा, 1 2, देन 2 हैं तो डाई वर्ड यूज करेंगे बेटा, क्लियर। देन ओइक, देन इट्स योर इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। बच्चों पहले भी मैंने आपको कहा कि ई जो है यहां रिटेन रहेगा, क्यों? नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज ऑफ कॉन्सोनेंट डी। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ बेटा 1 2 3, क्लियर, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, और 1 and 3 पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा, क्लियर। सो दैट इज ऑफ प्रॉप, देन एन प्लस 1 3 डाइओइक एसिड बेटा, देन इट्स ऑफ प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देन बेटा यहां आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, क्लियर, दैट इज एट योर 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन बेटा। It can also be written as your this way beta, then it's a butane 1 4 dioic acid.
Now बच्चों, in case of your 3 carboxylic acid groups, जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा, 3 के केस में हम सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, इंस्टेड ऑफ ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि आपके बेटा ये जो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, दे आर ओनली एट द टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल पोजीशन मैक्सिमम 2 हो सकती है, लेकिन यहां क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो हैं 3 है बेटा। तो क्या रहेगा बेटा, आप देखें। सो जब आपके 3 है बेटा, तो वी विल नॉट काउंट द कार्बन ऑफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा। इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन और दिस कार्बन। सो देयर आर योर 1 2 3 कार्बन एटम्स आर देयर। Is that clear? Then this so prop, then carbon carbon के बीच में बेटा single bond is there, then it's so in, then 1 पे carboxyl group है, 2 पे carboxyl group है, 3 पे carboxyl group है बेटा, then it's so 1 2 3 3 है try, then suffix क्या है बेटा, carboxylic acid. So the name is propane 1 2 3 tricarboxylic acid. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ना बच्चों, ये जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं बेटा, क्लियर, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आपका CO ग्रुप है, क्लियर, तो उसमें एल्डिहाइड्स आ गए बेटा, कीटोन्स आ गए जो अभी तक हमने किया, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ गए, और बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, और उनमें भी आपका कार्बोनिल ग्रुप रहता है। तो दे आर सेड टू बी योर कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड दे आर आल्सो सेड टू बी योर डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा, क्लियर, क्योंकि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं बेटा, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ योर OH पार्ट ऑफ द COOH ग्रुप बेटा, एंड दे आर said to be the derivatives of carboxylic acid। जैसे अभी मैंने पहले आपको कहा बेटा, तो उनमें कौन कौन से हैं ये एसिड डेरिवेटिव्स? दीज आर एसिड हलाइड्स, एस्टर्स, एंड देन एसिड एनहाइड्राइड्स, एंड देन योर एसिड अमाइड्स। सो बच्चों, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ बेटा लेट्स टेक द फर्स्ट केस, दैट इज एसिड हलाइड, क्लियर। सो बेटा इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है COCl। अब क्या था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था बेटा, आपका COOH था, क्लियर, तो OH इज हियर रिप्लेस्ड बाय योर दिस Cl। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर COCl बेटा। अदरवाइज जनरली हम देखें तो एसिड हैलाइड्स के लिए क्या रहेगा बेटा, दैट इज योर COX। X कैन बी योर क्लोराइड, कैन बी योर ब्रोमाइड, कैन बी योर आयोडाइड, बट बेटा दैट इज योर एसिड क्लोराइड वी टेक इन कॉमन, क्लियर। सो दिस इज योर COCl। Now beta general formula is your RCOCl, clear? So R is your some carbon carbon chain, that is your alkyl group over here. So beta now common names जब हम लिखेंगे तो we have to replace ic acid from the common name by aryl chloride, that is a YL chloride beta. Now beta let's take the example beta. Let's say some acetic acid is there, clear, that is a common name of this acetic acid beta, that is a common name. सो एसिटिक एसिड का जो ये आपका एक एसिड है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें बेटा YL क्लोराइड से, तो दैट इज योर नाउ एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज योर एसिटाइल क्लोराइड, ओके। और यहां जो आपका ये R है ना बेटा, दैट मे बी योर H और एनी एल्काइल ग्रुप, मींस एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में बी देयर। नाउ बच्चों सफिक्स दैट इज योर ऑयल क्लोराइड, और जनरली हम क्या लिखेंगे इसके बेटा, RCOCl को, दैट इज सम एल्केन हियर, क्लियर। सो एल्केन का E रिमूव किया बेटा, ऑयल क्लोराइड लगाया, क्लियर। सो इट्स एल्केन ऑयल क्लोराइड। सो दैट वे बेटा वी राइट द IUPAC नेम ऑफ द दिस एसिड क्लोराइड्स बेटा। सो दैट इज एल्केनोइल क्लोराइड। सो एल्केन का E रिमूव किया बेटा, ऑयल क्लोराइड सफिक्स लगाया, देन दैट इज योर नथिंग बट इट्स एल्केनोइल क्लोराइड। नाउ बेटा कॉमन नेम्स। अब बेटा जब हम कॉमन नेम्स इसके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट्स से जो आपका इक एसिड है, क्लियर, उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय एल क्लोराइड, क्लियर, दैट इज आइल क्लोराइड से हम रिप्लेस करेंगे इक एसिड बेटा, क्लियर। दैट वे वी कैन राइट द कॉमन नेम ऑफ द एसिड क्लोराइड्स। सो फॉर एग्जांपल बेटा HCOCl इज देयर,
Is that clear? That is CH3COCl is there. Clear? That is your CH3CH2COCl is there. Then it's your CH3CH2CH2COCl is there. Clear? So beta, if we want to write the common name, is that clear? Now beta, HCOOH के लिए क्या था? फॉर्मिक एसिड, यू नो. अब फॉर्मिक का एक एसिड को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? YL क्लोराइड से. सी YL क्लोराइड, सो दैट इज ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड. क्लियर? सो दिस वे वी कैन राइट द कॉमन नेम्स ऑफ दीज एसिड क्लोराइड्स बेटा. नाउ CH3COCl, इज दैट क्लियर? इसका जो नाम रहेगा दैट इज ऑफ एसिटाइल क्लोराइड. क्यों? क्योंकि एस्टिक एसिड से बेटा एक एसिड हटाया और YL दैट इज ऑफ आइल क्लोराइड सफिक्स यूज किया हमने, दैट्स योर एसिटाइल क्लोराइड. उसी तरह बेटा यहां क्या है? 3 है कार्बन एटम्स बेटा. देन प्रोपियोनिक एसिड से बेटा एक एसिड हटाया हमने तो क्या बन गया? वो प्रोपियोनाइल क्लोराइड. नेक्स्ट केस बेटा, दिस 1 2 3 4 4 है बेटा. ब्यूटारिक एसिड होना था, COOH होता, तो दिस COCl. तो एक एसिड हटा के हम YL दैट इज आइल क्लोराइड यूज करेंगे बेटा. सो दैट विल बी that is of butyryl chloride. Hope students this is clear. Now बच्चों IUPAC names. Now बच्चों there is only one carbon here, then it's a meth, then ane, then oil chloride is the suffix for this beta. Clear? Then it's a methanoyl chloride. E we have to remove here beta. We have to drop this E over here. So this is a methanoyl chloride. Similarly here 2 कार्बन एटम्स हैं, इथ प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड बेटा, देन इट्स इथेनॉयल क्लोराइड. देन 1 2 3 बेटा, 3 हैं प्रोप प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड, देन दैट इज ऑफ प्रोपेनॉयल क्लोराइड. देन बच्चों नेक्स्ट इज CH3CH2CH2COCl. क्लियर? देयर आर योर 4, देन इट्स ब्यूट प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड बेटा, देन इट्स ब्यूटेनॉयल क्लोराइड. Clear? So beta, this way we can name the different acid chlorides. Now बच्चों nomenclature of the acid anhydrides. You know बेटा जनरल फॉर्मूला जो है आपका एसिड एनहाइड्राइड्स का वो क्या है? RCOOCOR. Is that clear? Now beta that can be written like this, RCO whole twice O beta. Clear? और बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, RC11OO एंड देन दिस C11OR. इज दैट क्लियर? नाउ बेटा दिस एसिड एनहाइड्राइड. नाउ बच्चों कॉमन नेम्स ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. बच्चों जब हम एसिड एनहाइड्राइड्स की कॉमन नेम्स लिखते हैं बेटा, तो व्हाट वी डू कि जो आपका एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिड वर्ड है बेटा, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनहाइड्राइड. फॉर एग्जांपल दिस वाज CH3COOC11OCH3. नाउ बेटा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 2 ही कार्बन एटम्स हैं, दैट इज एस्टिक एसिड, यू नो. सो हियर वी हैव द 2 कार्बन एटम्स. क्लियर? सो एस्टिक एसिड का एसिड हटा के हम एनहाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे बेटा एज द सफिक्स. So that is acetic anhydride. So this is acetic anhydride. और बेटा let's say this HC11OOC11OCH3. अब नाउ बेटा इस साइड आपका एक ही कार्बन है और इस साइड आपके 2 कार्बन एटम्स हैं. तो आपका एक कार्बन एटम के लिए क्या था? फॉर्मिक एसिड, और दूसरे के लिए क्या होना? 2 के लिए क्या होना था बेटा? एसिटिक एसिड. सो हियर एसिड हटा के एनहाइड्राइड हमने वर्ड यूज किया बेटा, और अल्फाबेटिकली हम इसको लिखेंगे. सो इट्स एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, एक कार्बन एटम के लिए फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन एटम्स के लिए एसिटिक एसिड. क्लियर? तो एसिड हटाया बेटा, क्लियर, दोनों एसिड्स में से, और हमने सफिक्स एनहाइड्राइड यूज किया. और एसिटिक और फॉर्मिक को जब हम लिखेंगे बेटा तो अल्फाबेटिकली हम इनको लिखेंगे, तो ए कम्स बिफोर एफ बेटा. सो दैट्स व्हाई इट इज acetic formic anhydride. That is the common name of this anhydride beta. Now beta IUPAC names में हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है that is of C double bond O
here beta this was C double one O C double one O. Is that clear? And on either side we are having either hydrogen atoms or some alkyl group beta. Clear? Now the suffix जो है हम इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? Oic anhydride. What suffix we use? Oic anhydride. Now beta, let's say this is the CH3C11O whole twice beta O. Now this is nothing but this ethanoic anhydride, because on either side of this O, this is O, let's say this is C11O और ये एक और CH3 यहां है बेटा, एक CH3 यहां है. Clear? So this is eth for 2 carbon atoms beta, then this is ethanoic anhydride. Now beta, if you see over here, there are the CH3 CH2 CO whole twice O beta. So here we have the 3 carbon atoms on either side of this O beta. Means इस साइड इस कार्बन के साथ भी 2 और कार्बन है, तो 3 कार्बन इस साइड हो गए बेटा इस O के, और 3 ही कार्बन इस साइड हो गए. सो 3 के लिए वर्ड रूट क्या रहेगी? प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एनहाइड्राइड बेटा. देन इट विल बी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बेटा, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने इस तरह लिख लिया इसी को. दैट इज CH3 CH2 C11O O C11O CH2 CH3 beta. Now here we have 1 2 3 3 carbon atoms on this side, 3 carbon atoms on this side. So this is a propanoic anhydride beta. This is a propanoic anhydride. So this is a propanoic anhydride. Hope this is clear. Now bachcho, this is another anhydride. This is an oxygen. Let's say on this side we have the 2 carbon atoms and on this side we have the 3 carbon atoms. सो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो इस तरह हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा. दिस वाज CH3 C11O C11O CH2 CH3. सो बेटा ऑन दिस साइड ऑफ दिस ऑक्सीजन बेटा वी हैव 2 कार्बन एटम्स, ऑन दिस साइड वी हैव द 3 कार्बन एटम्स बेटा. तो 2 के लिए जो वर्ड रूट हम यूज करते हैं दैट इज इथ, और 3 के लिए प्रॉप बेटा. और अल्फाबेटिकली हम इनको लिखेंगे तो इथ प्लस एन, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एनहाइड्राइड हमने वर्ड यूज कर. सो दिस इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. सो बेटा दिस इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. सो बेटा थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप स्टडिंग बेटा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेटा, so that in future I can give you the better videos. So thank you. Have a nice day.